Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the daily Leetcode challenge and today's problem name is k-radius subarray averages. So the problem statement is you are given a zero index array nums of an integer and an integer k. K-radius average for a subarray of nums centered at some index I with a radius k is the average of all elements in nums between the indices I minus k to I plus k inclusively. If there are less than k elements before or after the index I, then k radius average is -1. Build and return an array averages of length n, where averages of I is the k radius average for the subarray centered at index I. So we know what is the average. Average is nothing but the sum of all the elements divided by the total number of elements, like this. So first example का देखते हैं, उससे समझ आएगा what the question wants to say. So basically हमें क्या करना है, हमें k radius averages की array रिटर्न करनी है for this particular nums. उस केस में क्या होता है, what is the k radius averages? It is nothing but the sum of all the average of all the elements. Let's say the k radius average for index I is average of all the elements from the I minus kth index to the I plus kth index inclusively. So इस केस को चेक करें एंड देयर इज वन मोर कंडीशन, अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड में लेस देन के एलिमेंट्स हैं, देन इन दैट केस के रेडियस एवरेज वुड बी -1. ठीक है, लाइक फॉर द इंडेक्स 0 वी आर नॉट हैविंग, लाइक इन दिस केस 3. So for index 0 we are not having three elements on the left side, so for this case we written -1. Same for the index 1 also, we are not having three elements on the right side because k is 3. Hence for this case also we written -1. For index 2 also we just have only two elements on the left side. So it is less than k. Hence for this also we written -1. But for index 3, अगर आप index 3 को check करें, so we are having three elements on the like we have three elements on the left side and we need only at least three. So मैं क्या करूँगा, जो i माइनस के इंडेक्स क्या होगा फॉर 3 के लिए, जो मेरे पास i3 है, then I minus k will be what, 3 minus 3 that is 0. So it will be start at index 7 and end कहाँ पे करेगा, 3 plus 6 पे, I is equals to 3 है, so 3 plus 3 is 6, तो 6 पे एंड कर रहेगा. तो जो ये सभी एलिमेंट्स है फ्रॉम इंडेक्स 0 to 6, इन सबका मुझे सम चाहिए एंड उसका जो एवरेज होगा, like इसका जो एवरेज होगा फ्रॉम इंडेक्स 0 to 6, दैट वैल्यू आई विल पुट एट इंडेक्स 3 इन माय एवरेज एरे. तो इसका जो सम आता है वो 37 आता है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है क्योंकि 3 elements are on the left side of my index I, 3 elements are on the right side, and 1 element is the our index I only. So total we have 2k plus 1 elements. So that's why we got 7 number of elements. So for the first value, if we take the floor value of it, it will be 5. So we have written 5 at index 3. Same for index 4. Index 4 के लिए I minus kth element कहाँ पे होगा, 1 पे होगा because 4 minus 3 is 1 and 4 plus 3 is 7 पे होगा. So for the I have to take the average of the elements from the index 1 to 7, right? From index 1 to 7. So इसका जो sum आएगा मेरे पास, तो जिसका जो average आएगा, that would be nothing but 4 and same for my index is equals to 5. This for this case also I have to take the average from the index 2 to 8. तो उसके लिए भी 4 आ चुका है. But for index 6 के लिए एंड 7 के लिए क्या होगा, अगर आप चेक करें तो 6 के लिए मेरे पास राइट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लेस देन के, सो मैं 6 7 8 सभी के लिए -1 रिटर्न कर दूंगा, राइट. सो हमें क्या करना है, लाइक फॉर इंडेक्स आई के लिए मैं ब्रूट फोर्स को एक बार थोड़ा सोचने की कोशिश करूँ, तो फॉर इंडेक्स आई में क्या कर रहा हूँ, सभी एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, फॉर इंडेक्स आई मुझे एवरेज चाहिए. एवरेज निकालने के लिए तो मुझे पहले मुझे सम चाहिए होगा ऑफ द elements from index I minus k to I plus k. But अगर if I will start doing this particular thing, if I start finding the sub-array sum for each and every value of I, so overall time complexity हो जाएगी. So and time complexity will be required for the iteration
over the nums array, and in order to calculate the sum of the subarray for all the values of I will be requiring another 2k complexity. So overall time complexity would be 2 times of n into k. So अब अगर हम टाइम कॉन्स्टेंट्स को चेक करें, so n is also 10 to the power 5, k is also 10 to the power 5. So in this particular case, n into k time complexity है, that is very high to satisfy the constraints. हमें ऑप्टिमाइज सोचना पड़ेगा. बट अगर आप एक चीज नोटिस करें, जो मेरे पास इंडेक्स 3 के लिए जो विंडो थी, दैट इज स्टार्टिंग एट इंडेक्स 0 एंड 6, राइट. और जो इंडेक्स 4 के लिए जो विंडो थी, दैट इज स्टार्टिंग एट इंडेक्स 1 एंड एंडिंग एट 7. तो इस केस में सिर्फ जो एक्सट्रीम एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है, वो नहीं है, और एक जो लास्ट एलिमेंट है जो इसका है, जो विंडो 2 का है, दैट इज 7, वो नहीं है. बाकी सभी एलिमेंट्स कॉमन है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट विंडो थी, जो रेड वाली विंडो है, जो इंडेक्स 3 की विंडो है, उसका सम अगर पता है, सो आई कैन एबल टू फाइंड द सम फॉर माई दिस ब्लू विंडो एज वेल इन अ कांस्टेंट टाइम. कैसे फाइंड कर सकता हूँ? क्योंकि इसका जो सम था, उसमें से मुझे बस लेफ्ट एक्सट्रीम एलिमेंट है उसको रिमूव करना है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है, और जो न्यू राइट एक्सट्रीम एलिमेंट ऐड हुआ है उसको ऐड करना है. दैट्स हाउ आई कैन गेट द न्यू सम फॉर माय ब्लू सब array. And in order to find the sum for my green sub array, again same thing has to be done. I have to subtract the sum for my left element of my blue sub window, and I have to add the value of my right element of my green sub window. तो मुझे समझ आ चुका है. अगर लेट से मेरे पास एक विंडो का सम है, अब इसका मैं आपको कोड ही एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्टली. सो हमें पहले क्या बोला है कि इनिशियली एरे, जो आंसर एरे थी वो इनिशियलाइज कर ली है. दिस इज नथिंग बट माई होल्डिंग द एवरेजेस. दिस इज होल्डिंग द माई के रेडियस एवरेज, राइट. और मैंने इनिशियली -1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी फॉर ऑल द इंडेक्सेस. ठीक है. अब मैं चेक कर रहा हूँ बेस केस है, अगर जो नम्स ऑफ आया है दे आर लेस देन 2 इंटू के प्लस 1. ये जरूरी भी नहीं है आप रखो, बट इट्स बेटर इफ यू राइटिंग इट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. कि अगर मेरे पास जो नम्स में एलिमेंट्स हैं, हमें पता है अगर एटलीस्ट एक जो विंडो का साइज है वो क्या है, 2 इंटू के प्लस 1 है. अगर मेरे पास नम्स का जो साइज है वो 2 इंटू के प्लस 1 से ही छोटा है, इट मीन्स देर विल बी नो window will exist, hence we have to write -1 for all the indices of nums. So ये चीज ही मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है. अगर मेरे पास 2 इंटू के प्लस 1, दैट इज माई विंडो साइज, उससे भी कम एलिमेंट है, सो आई एम जस्ट रिटर्निंग -1 फॉर माई ऑल द इंडेसेस. अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो सबसे पहले फर्स्ट वैलिड विंडो होगी वो कहाँ पे होगी, फॉर द इंडेक्स आई इक्वल टू के पे होगी. आप चेक कर सकते हो, आई की वैल्यू 3 थी, तो आई इक्वल टू के पे ही होगी, क्योंकि मेरे पास जब आई की वैल्यू के होगी तभी मेरे पास एटलीस्ट के एलिमेंट्स विल एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट साइड. और ये कब तक चलेगी, जब तक मेरे पास आई की वैल्यू n माइनस के माइनस 1 के इक्वल ना हो जाए एक्चुअली में. सो इट विल स्टार्ट एट इंडेक्स आई इज इक्वल्स टू के, एंड माई वैलिड आई विल बी टिल n माइनस के माइनस 1. तो यहाँ पे चेक कर रहे हो, n की वैल्यू 9 थी बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9, k is 3, तो 9 माइनस 3 माइनस 1 इज 5. सो जो लास्ट मेरे पास वैलिड विंडो आई थी, दैट इज फॉर आई इज इक्वल्स टू 5 ओनली. यू कैन चेक. क्यों? क्योंकि आई इज इक्वल्स टू 5 के लिए ही मेरे पास एटलीस्ट के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन द राइट साइड. उसके बाद फॉर all the elements I am not having the k elements on the right side. So ये मुझे पता चल चुका है कि जो वैलिड रेंज है दैट इज फ्रॉम k is equals to n minus k minus 1, जिसके लिए मुझे आंसर को फाइंड करना है. तो फॉर माय फर्स्ट विंडो के लिए जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले फर्स्ट विंडो का जो सम है वो फाइंड कर लिया है, प्री कैलकुलेट कर लिया बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेजेस. तो मैंने क्या किया, इंडेक्स आई इक्वल टू 0 से लेकर लाइक इन रेफरेंस टू द फर्स्ट टेस्ट केस आई इक्वल टू 2 के जो होता है दैट विल बी 6. तो जो मैंने 6 जो लास्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट विंडो का उसको अभी ऐड नहीं किया है, जस्ट उससे पहले तक दैट इज आई इक्वल टू 5 तक के सभी सम को ऐड करके करंट विंडो सम वेरिएबल में स्टोर कर लिया है. ठीक है. अब मैं जैसे ही आई इक्वल टू के पे जाऊंगा, सबसे पहले जो मैंने एक्सट्रीम एलिमेंट को ऐड नहीं किया था उसको मैंने ऐड किया करंट विंडो में नम्स ऑफ आई प्लस के करके. अब मेरे पास currently I am having the sum of my current window. Just by dividing it by 2 into k plus 1, because these are the numbers in my current window, I will get the average for the element
हैविंग द सेंट्रेट इंडेक्स आंसर। तो इसका एवरेज जो मैंने आंसर ऑफ आई में स्टोर कर लिया है, अब मुझे नेक्स्ट विंडो पे ट्रांसफर करना है। तो नेक्स्ट विंडो पे ट्रांसफर करने के लिए देखो, मैं एक्सट्रीम एलिमेंट ऑफ करंट विंडो तो मैं लूप की स्टार्टिंग में ही ऐड कर रहा हूँ, बट जब मैं सब ब्लू वाले विंडो पे जाऊंगा, तो उस पर जाने से पहले मुझे जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट है ऑफ माई करंट विंडो वो रिमूव करना पड़ेगा। सो मैं नम्स ऑफ आई माइनस के को रिमूव कर दिया है। So that's how I'm doing, and I am calculating the my average k radius average for all the valid value of I, and after that I'm returning my answer. So this is the simple code. I have used sliding window approach in this question, and now the time complexity is nothing but the constant. It's just taking the big of n time. क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही आइट्रेशन कर रहे हैं। सो ये अपने पास we can afford this particular big of n time complexity for this constant. So it will be, let's try to submit the code, and it will definitely going to submit successfully. So thank you guys for watching this video. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, then please subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any query or feedback for me, then write it down in the comment section. Thank you.